students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 4, the animal life. So students, in this chapter we shall learn about the animal life. How does the animals live in their surroundings? What are the food eating habits of the animal? We will discuss in this chapter. Now students, let's begin the chapter. Chapter 4, the animal life. Get started. Where are these animals generally found? Choose the appropriate feature of each from the box and write them below their pictures. Now students, here are the some words in the helping box. आपको क्या करना है, इन helping words से इन images को identify करके उनके features को लिखना है. Now let us start. Fish जो है, fish में क्या adaptation features होते हैं, उसके waterproof scales. Now write it here, waterproof scales. कैमल में क्या होता है बच्चों, कैमल में सबक्यूटेनियस फैट होता है जिसमें वो अपने फैट को स्टोर करता है. नेक्स्ट है बर्ड. बर्ड की लाइट हॉलो बोन्स होते हैं. नेक्स्ट है पोलर बियर का बच्चों थिक स्किन होती है जिसकी वजह से वो कोल्ड में भी रह पाता है. Now students, let's start the chapter. The habitat of an animal is the place where it lives. Animals have different body features, behavior and habits. They have special features for feeding, breathing, movement, reproduction, etc. हैबिटेट किसी भी एनिमल की वो जगह होती है जहाँ पे वो रहता है. डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट बॉडी फीचर्स होते हैं, बिहेवियर होता है और उनकी हैबिट्स यानी आदतें भी अलग होती हैं. उनकी बॉडी के स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू वो फीड करते हैं, ब्रीथ करते हैं, मूव करते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं. Now let's start our first topic, breathing methods. All animals breathe in oxygen but they take in differently way. Birds, reptiles and mammals breathe with the help of lungs while earthworms breathe through their skin and fish breathe through their gills. बच्चों सारे ही एनिमल्स ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं मगर उनकी ब्रीथिंग ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं. बर्ड्स, रेप्टाइल्स जो है लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. इंसेक्ट्स जो होते हैं बच्चों स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं और फिश जो है अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज लंग्स. Most of the terrestrial animals, including human beings, birds, and reptiles, take in oxygen through their noses, which pass into the windpipe and then into the lungs. The lungs are abundantly supplied with blood vessels. When the air reaches the lungs, exchange of gases take place. The oxygen from the air passes into the blood and the waste carbon dioxide passes out through the nose. बच्चों बहुत सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, वो ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं नोज के थ्रू और फिर विंड पाइप के थ्रू वो लंग्स तक जाती है. लंग्स जो होते हैं ब्लड वेसल्स से अटैच रहते हैं. एयर जो होती है जैसे हमारी लंग्स के अंदर जाती है, रीच करती है, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने लगता है यानी कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं नोज के थ्रू. Now next is amazing fact. A special substance called hemoglobin helps to carry fresh oxygen through the blood to all parts of the body. बच्चों हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन करके स्पेशल सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज स्पाइरेकल्स. Insects have special openings called spiracles. These are openings along the side of the insect body through which the insect breathe in air. Their spiracles lead to a system of tubes called trachea. The trachea divide and subdivide into branches as they pass through the body. Air enters the body through this network. Oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. इंसेक्ट्स की बॉडी में स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं जिसे हम स्पाइरिकल्स कहते हैं. बच्चों ये इनकी इंसेक्ट की बॉडी के एक साइड होती है जिसके थ्रू इंसेक्ट्स जो होते हैं एयर को ब्रीथ करते हैं. स्पाइरिकल्स का बच्चों ट्यूब का सिस्टम होता है, उसे हम ट्रैकिया कहते हैं. ट्रैकिया को हम डिवाइड या सब डिवाइड कर सकते हैं ब्रांचेस में अगर उसे बॉडी से पास करवाया जाता है. एयर जो है इन्हीं स्पाइरिकल्स के थ्रू बॉडी में एंटर करती है, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. Next is moist skin. Creatures living in damp environment have unusual ways of breathing. A frog is an amphibian. It can live both on land and in water. On land, it uses its lungs to breathe, but in water, it breathes through its moist skin. कुछ क्रिएचर्स जो डैम्प इन्वायरमेंट में रहते हैं यानी जो गीली जगहों पे रहते हैं, वेट प्लेस पे रहते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग का. फ्रॉग एक एम्फीबियन है जो जमीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है. जब वो जमीन पे होता है लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है और जब वो पानी में रहता है अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. Earthworms also breathe through their moist skin. They take in oxygen directly through their skin and give out carbon dioxide.
द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। अर्थवॉर्म भी बच्चों स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, स्किन से वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, उसके इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। Their skin is always moist by a slimy mucus substance produced by the skin cells. A moist surface is necessary for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be given off. बच्चों जो अर्थफॉर्म की स्किन है वो मॉइस्ट रहती है क्योंकि उसकी स्किन में से म्यूकस सब्सटेंस रिलीज होता रहता है, तभी बच्चों वो ऑक्सीजन को ब्रीथ कर पाता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट इज गिल्स। Animals like fish, tadpoles, shrimps, oysters, prawns, and crabs breathe oxygen dissolved in water through their gills. Gills are feathery organs enclosed in the pouches present on the east side of the head of these animals. When oxygen-rich air passes over their gills, it gets absorbed and carbon dioxide is given out. कुछ animals जो पानी में रहते हैं, just like fish, tadpole, shrimps, वो कैसे ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन हमारी पानी में डिसॉल्व रहती है उसी के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। उनका बॉडी पार्ट गिल्स जो इसमें हेल्प करता है। गिल्स एक फेदरी ऑर्गन्स होते हैं जो पाउचेस से एनक्लोज रहते हैं और बच्चों वो उनके हेड के दोनों ही साइड होते हैं। जो ऑक्सीजन रिच वाटर होता है जैसे ही गिल से पास होते हुए जाता है तो वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। नाउ स्टूडेंट दिस इज द गिल सीन थ्रू द स्किन, वाटर इन एंड वाटर आउट। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका Although dolphins and whales are aquatic animals, they breathe through their lungs. They are mammals. They have to rise to the surface frequently to breathe. When underwater, they hold their breath. When they need air, they return to the surface to take in more fresh air. Unlike other mammals who breathe through their nostrils and mouth, dolphins and whales breathe through a blowhole situated on the top of their heads. Since the blowhole is at the top of the head, only a small portion of the head is required to break the surface of the water to inhale air. बच्चों डॉल्फिन्स और व्हेल्स एक्वेटिक एनिमल होने के बावजूद भी वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। बच्चों वो बार बार पानी के सरफेस से ऊपर आते हैं ब्रीथ करने के लिए, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेने के लिए। बच्चों सारे मैमल्स की तरह ही डॉल्फिन और व्हेल्स भी एक ऐसे मैमल हैं जो नॉस्ट्रल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका डॉल्फिन्स और व्हेल्स की ब्लो होल होते हैं हेड के ऊपर जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, सरफेस के ऊपर आते हैं वाटर के और एयर को इनहेल करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कैन यू टेल वन क्वेश्चन, हाउ कैन डॉल्फिन्स लंग्स होल्ड मोर गैस? डॉल्फिन की लंग्स जो है मोर गैस कैसे होल्ड कर पाती है? बिकॉज ऑफ द contraction and expansion. Now let's do fun activity. Observe a fish in an aquarium. There are flap-like structure on both sides of its head. Gills are present beneath these flaps. Observe the movement of the flaps and the color of the gills. आपको क्या करना है, एक एक्वेरियम में फिश को देखना है, उसके फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी फिन्स जो होते हैं उसके हेड के दोनों साइड होते हैं, उसके बिलो साइड ही गिल्स लोकेटेड होते हैं। गिल्स को आप ऑब्जर्व करेंगे और उसके कलर को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट। Animals need to move from one place to another in search of food, shelter, and also to protect themselves from predators. Most terrestrial animals have four limbs. The front limbs are called the forelimbs and the back limbs are called the hind limbs. Now students, humans use their hind limbs to walk and their forelimbs to hold objects. एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं फूड को सर्च करने के लिए, रहने के लिए, जगह ढूंढने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रीडेटर्स यानी शिकारियों से। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके फोर लिम्स होते हैं, फ्रंट लिम्स को हम फोर लिम्स कहते हैं, बैक लिम्स को हम हिंड लिम्स कहते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं हिंड लिम्स यानी लेग्स के थ्रू वॉक करते हैं और फोर लिम्स यानी हैंड्स के थ्रू चीजों को होल्ड करते हैं। Now, snakes are also reptiles, but they do not have legs. Instead, the scales on the underside of their body grip the ground and helping them to move. Snake reptile की कैटेगरी में होने के बावजूद भी उसके legs नहीं होते, वो scales के थ्रू क्या करता है, स्लीथर करता है, क्रॉल करता है ग्राउंड के ऊपर जो उसके लोअर साइड ऑफ द बॉडी सरफेस होते हैं। Now, student, let's see amazing fact. Bats are the only mammals that can fly. The skin from their body stretches to join their forelimbs, forming wing-like structure. बैट ही सिर्फ एक ऐसे मैमल की कैटेगरी में आते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं। उनकी स्किन जो होती है स्ट्रेच होती है जिसकी वजह से उनकी फोरलिम्स जॉइन रहते हैं और विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। मोस्ट फिश हैव टू सेट्स ऑफ पेयर fins, one in the front and one in the back. These fins are used for swimming. Fish also have unpaired fins, which are used to stabilize their body in water. The tail fin is used to change direction while swimming. Fish have a streamlined body that helps them to move easily through the water. फिश बच्चों अपने फिन्स के थ्रू स्विम कर पाती है। बहुत सारे फिश के टू सेट्स होते हैं फिन्स के, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ होता है। फिन्स के थ्रू ही फिश स्विम कर पाती है। फिश के जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं वो उसको स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं, बैलेंस बनाने में।
टेल फिन के थ्रू वो डायरेक्शन चेंज करती है। स्विम करते हुए फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिसके थ्रू वो वाटर फ्लो को आसानी से कट करते हुए स्विम कर पाती हैं। टर्टल्स हैव 4 पैडल लाइक लम्स टू पुश वाटर एंड मूव फॉरवर्ड। पेंगुइन्स एंड सील्स आल्सो हैव फ्लिपर्स टू स्विम। टर्टल्स के 4 पैडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर को पीछे की तरफ धकेलते हुए आगे बढ़ने में उसकी मदद करते हैं। पेंगुइन और सील्स के भी बच्चों फ्लिपर्स होते हैं जिसके थ्रू वो स्विम कर पाते हैं। डक्स एंड गर्ल्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। फ्रॉग्स आल्सो हैव वेब्ड फीट टू मूव इन वाटर इजीली। डक्स के फ्रॉग्स के वेब्ड फीट होते हैं। नाउ इंसेक्ट हैव 6 लेग। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स जंप विद देयर हिंड लेग्स। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई बट देयर विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर बर्ड्स विंग्स। बच्चों इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं कूद पाते हैं हिंड लेग्स के थ्रू, और बच्चे इंसेक्ट्स उड़ भी पाते हैं। उनके विंग्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं बर्ड की विंग्स के जैसे। नाउ नेक्स्ट इज अमेजिंग फैक्ट, द विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द विंग ऑफ बर्ड एज दे डू नॉट हैव बोन्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स और फेदर्स। बच्चों जो बर्ड्स की फेदर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, उस पर बोन्स होते हैं, मगर जो इंसेक्ट के विंग्स होते हैं उसमें बोन्स नहीं होती। Now next is amazing fact, the Arctic tern spends winters in Antarctica and then goes to Arctic to lay eggs. It has a lifespan of about 20 years and in that time some birds travel up to 2.4 million kilometer. Arctic tern एक ऐसी बर्ड क्रिएचर है जो एंटार्क्टिक से होती हुई आर्टिक में जाती है विंटर सीजन में एग्स को ले करने के लिए। उसका लाइफ स्पेन पीरियड 20 साल का होता है और वो इतने 20 सालों में 2.4 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती है। The forelimbs of the birds are modified into wings that help them to fly. They have hollow bones that make flying easier. जो बर्ड्स होती है उनके फोरलिम्स विंग्स के थ्रू मॉडिफाई रहते हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और उनकी बोन्स हॉलो होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी कवरिंग। Different animals have different type of body covering which help them to survive best in their environment. Some type of body coverings are डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स होती हैं जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। उनकी कुछ टाइप की बॉडी कवरिंग्स होती हैं। फर्स्ट इज स्केल्स। द बॉडी ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स आर कवर्ड विद स्केल्स। द स्केल्स ऑन द बॉडी ऑफ फिश आर फ्लेक्सिबल, ओवरलैपिंग एंड वाटरप्रूफ. They secrete a type of slime that makes it easier from them to escape enemies and protect them from disease. The scales on the underside part of a snake body help it to grip the ground, allowing it to slither. जो बॉडी होती है फिश की, रेप्टाइल्स की, वो स्केल से कवर्ड रहती है। जो स्केल होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहते हैं और वाटरप्रूफ होते हैं। बच्चों उसमें से एक स्लाइम सीक्रेट होता है जो उनको इजी बनाता है एनिमीज से बचने के लिए और डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखता है। जो स्केल्स होते हैं उनके अंडरसाइड पार्ट में स्नेक के वो उसको स्लीथर करने में यानी रेंगने में मदद करते हैं। नाउ लेट्स सी अमेजिंग फैक्ट, द स्केल्स आर हार्ड प्रोवाइडिंग आर्मर लाइक प्रोटेक्शन फॉर द एनिमल्स। स्केल्स इनके बहुत मजबूत होते हैं जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज शेल। द बॉडीज ऑफ स्नेल एंड टोटोटॉयज आर कवर्ड विद अ हार्ड शेल दैट प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज. It is a common sight to see a snail withdrawing its feet and head into its shell when in danger. जो स्नेल या टोटोटॉयज की बॉडी होती है आपने देखा होगा उसकी बॉडी एक हार्ड शेल से कवर्ड रहती है जो उसकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ही कोई स्नेल या टोटोटॉयज क्या देखता है, कोई डेंजर देखता है, वो अपने शेल में जाकर छिप जाता है और अपने फीट के थ्रू वॉक करता है। नाउ नेक्स्ट इज फेदर्स। The bodies of the birds are covered with feathers that help them to fly. Feathers also helps them to keep them warm. जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो फेदर्स से कवर रहती है जिसकी वजह से वो उन्हें हीट लग पाती है, वार्म रह पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अमेजिंग फैक्ट, स्ट्रिप फर एज सीन इन अ टाइगर वर्टिकल स्ट्राइप्स इन अ वेरिएशन ऑफ बॉडी कवरिंग कॉल्ड द camouflage. इट हेल्प्स द एनिमल्स ब्लेंड इनटू देयर एनवायरनमेंट हाइडिंग फ्रॉम एनिमीज। आपने देखा होगा धारियां होती हैं टाइगर की बॉडी पे, वो जो धारियां होती है स्ट्राइप्स वेरिएशंस होती हैं वो उसको हम कॉमिफ्लेज कहते हैं। कॉमिफ्लेज एक प्रोसेस होता है, फिनोमिना होता है जिसमें कोई भी एनिमल अपने आप को अपने हाइड कर पाता है अपने आसपास की जगहों के थ्रू जिससे कि कोई भी उनकी एनिमल उनके ऊपर अटैक ना कर पाए। नाउ नेक्स्ट इज फर। All mammals have fur of one sort or another. It may be short hair or a full coat. Now, fur keeps the animals warm in the winter and cool in the summer. Some animals shed their fur and grow different coats depending on the season. बच्चे सारी मैमल्स के ऊपर फर होते हैं। ये बच्चे शॉर्ट हेयर भी होते हैं, फुल फर कोट भी हो सकता है। फर जो होता है एनिमल्स को विंटर में वार्म रखता है और कूल रखता है समर में। एनिमल्स जो होते हैं फर को शेड भी करते हैं, डिफरेंट कोट्स को अपने खुद ही नेचुरली ग्रो करते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज स्पाइंस। स्पाइंस आर हार्ड, थॉर्नी और निडल लाइक स्ट्रक्चर. Animals such as porcupines and sea urchins grow spines for self defense. स्पाइंस यानी कांटे। कुछ आपने देखा होगा पॉर्क्यूपाइंस या जो अर्चिन्स होते हैं उनके स्पाइंस होते हैं जिससे वो अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्ट कर पाए। नाउ स्टूडेंट्स बिकम अ चैम्प एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट, इंसेक्ट्स हैव 6 legs.
अ पेंगुइन इज अ, पेंगुइन क्या है बच्चों? पेंगुइन बर्ड होती है। नेक्स्ट, रैबिट्स आर rodents. नेक्स्ट, एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, dash breathe through spiracles insects. Now next is migration. Migration is defined as the movement of an animal from one region to another in response to change in weather, habitat or availability of food. This happens at regular periods of time during a particular season. माइग्रेशन का मतलब होता है एनिमल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वेदर चेंज हो रहा है इस चक्कर में, या हैबिटेट की वजह से, या उन्हें फूड नहीं मिल पा रहा इस वजह से जो हैपेंस होता है ये रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में होता है, अलग अलग मौसमों में होता है। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। Birds like the Arctic tern travel a very long distance of about 35,000 km from the Arctic to the Antarctic and back. Siberian cranes come to India every winter to breed. बच्चों सिबेरियन क्रेन्स जो होती हैं सर्दियों के मौसम में इंडिया आती हैं। आर्टिक टर्न एक बर्ड है जो डिस्टेंस कवर करती है आर्टिक से अंटार्कटिक तक का। नाउ नेक्स्ट इज फिश लाइक सैल्मन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द सी. It travels long distance to reach the river to lay eggs. When the eggs hatch, the young salmon travel back to the sea. जो फिश यानी सैल्मन जो होता है सी तक आता है एक्स को ले करने के लिए, जब वो एक्स को हैच कर देता है समुद्र में वापस से चला जाता है। नाउ इंसेक्ट्स लाइक लोकस्ट एंड मोनार्च बटरफ्लाइज आल्सो माइग्रेट लार्ज डिस्टेंस. लोकस्ट ट्रेवल इन ह्यूज स्वाम्स एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स. मोनार्च बटरफ्लाई माइग्रेट फ्रॉम कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका टू मेक्सिको. कुछ इंसेक्ट्स यानी लोकस्ट या मोनार्च बटरफ्लाइज होती हैं वो भी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं। लोकस्ट जो होता है स्वाम्स, स्वाम्स यानी बच्चों कहते हैं ग्रुप्स में ट्रैवल करता है वो, और जो आपकी क्रॉप्स होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है लोकस्ट। मोनार्च बटरफ्लाइज जो होती हैं वो क्या करती हैं? कनाडा नॉर्थ अमेरिका से मेक्सिको तक माइग्रेट करती हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज हैबिटेट, द एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। एक ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं। ब्रीथिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को लेना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। गिल्स, ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक एनिमल, ये एक्वेटिक एनिमल के ब्रीथिंग ऑर्गन होता है। स्पाइरिकल्स, ईयर होल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स फॉर ब्रीथिंग। स्पाइरिकल्स ईयर होल्स होते हैं जिसके थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ कर पाते हैं। माइग्रेशन, मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह वापस से अपनी जगह पे आ जाना। नाउ लेट्स लुक इन अ नटशेल। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट हैव स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स, इंसेक्ट ओपनिंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं उसे हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। ह्यूमंस यूज देयर हिंड लिम्स टू वॉक एंड फोर लिम्स टू होल्ड ऑब्जेक्ट, ह्यूमंस हिंड लिम्स के थ्रू चलते हैं और फोर लिम्स के थ्रू चीजों को होल्ड करते हैं। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स, फिश जो है फिन्स के थ्रू स्विम कर पाती है। फेदर्स हेल्प बर्ड्स स्टे वार्म, फेदर्स बच्चों वर्ड्स को वार्म रखते हैं यानी गर्म रखते हैं। स्पाइंस आर हार्ड थॉर्नी और निडल लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइंस बच्चों कांटों को कहते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स डू एक्सरसाइज 8, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। डैश आर रेप्टाइल्स दैट हैव नो लिम्स, कौन से रेप्टाइल्स होते हैं जिसके लिम्स नहीं होते? स्नेक इज द राइट आंसर। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरिकल्स। Which organ helps a fish breathe? Gills. B is the right answer. Dolphin and whale breathe through their blowhole. C is the right answer. A series of tiny holes along the side of the body of insect is called the spiracles. A is the right answer. Now, student, let's do exercise B. Answer in one word or phrase. The place where a particular animal lives naturally called habitat. Special substance that helps to carry oxygen through the blood to all parts of the body, hemoglobin. ओनली मैमल्स डेट कैन फ्लाई, कौन से मैमल्स हैं जो फ्लाई कर पाता है? बैट। द बॉडी कवरिंग ऑफ फिश एंड स्नेक, उसे हम क्या कहते हैं बॉडी कवरिंग को? स्केल्स। द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, माइग्रेशन। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रॉग्स हैव डैश टू मूव इन वाटर। फर्स्ट में हम फिल करेंगे वेब्ड फीट। द बॉडी ऑफ स्नेल एंड टोटोटॉयज आर कवर्ड विद, स्नेल और टोटोटॉयज की बॉडी पे क्या होते हैं? शेल। A frog is an amphibian. Fish have dash which help them to swim. Fins. The forelimbs of birds are modified to wings.
नाउ स्टूडेंट लेट्स टू एक्सरसाइज डी, मैच दी कॉलम्स। लंग्स, बच्चों लंग्स के थ्रू मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं ब्रीथ करते हैं। फर्स्ट को मैच करेंगे ई से। मॉइस्ट स्किन के थ्रू फ्रॉग और अर्थवॉर्म। सेकंड को मैच करेंगे सी से। पैडल्स, पैडल्स शो करते हैं पैंगुइन और टर्टल। थर्ड को मैच करेंगे बी से। नेक्स्ट है वेब्ड फीट, किसके होते हैं, डक और फ्रॉग के। फोर्थ को मैच करेंगे ए से। माइग्रेशन बच्चों कौन करते हैं, आर्टिक टर्ना और सैल्मन। फिफ्थ को मैच करेंगे डी से। नाउ स्टूडेंट रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.